एवरीवन और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो CNX से रिलेटेड ये शायद मेरी लास्ट वीडियो हो, क्योंकि इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा CNX के ऊपर, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। जो भी इंटरव्यूज़ राउंड होते हैं, मैंने कैसे ज्वाइन किया, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया आपको। कंपनी के 3-4 व्लॉग्स भी बनाए जो आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने MCAT की वीडियो, इससे पहले मैंने MCAT की वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको टॉपिक शेयर किए थे MCAT के। एंड वर्सेंट की भी वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने वर्सेंट का पूरा लाइव टेस्ट डाल रखा है। वहाँ जाके आप लोग देख लेना कि वर्सेंट राउंड होता कैसा है। एंड जो थर्ड एंड लास्ट इंटरव्यू राउंड होता है वो होता है आपका ऑप्स राउंड या मैनेजर राउंड। वो आपका डिपेंड करता है कि अगर आप वर्चुअली दे रहे हो तो आपका वर्चुअल हो जाता है, वीडियो लैपटॉप पे वीडियो कॉल हो जाती है। एंड अगर आप वॉक इन जाते हो तो आपको सामने से HR से जो भी आपका ऑप्स राउंड होता है वो अलाइन करा दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड आज मैं एक एकदम ब्रीफ क्वेश्चन विद आंसर लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पहले अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। Question: Can you tell me a little bit about yourself? Answer: Sure. My name is, and I recently graduated from with a degree in. I have been actively looking for opportunities in, and I'm excited about the possibility of working for Concentrix. Question: What do you know about Concentrix? Answer: Concentrix is a global business services company that provides customer experience management, back office processing, and consulting services to a wide range of clients. I understand that the company has a strong reputation for providing high quality services and that it values its employees and invests in their development. Question: Why do you want to work for Concentrix? Answer: I'm interested in working for Concentrix because of its reputation as a leader in the industry. And I believe that it would provide me with an excellent opportunity to develop my skills and gain experience. I am also excited about the prospect of working with a team of dedicated professionals who are committed to delivering the best possible results for their clients. Question: What skills and experience do you bring to the role? Answer: Although I am a recent graduate, I have gained valuable skills and experience through my academic studies and extracurricular activities. For example, I have strong communication and interpersonal skills, which I have developed through my work as a volunteer tutor and my involvement in student organizations. I am also proficient in, and I have experience working in teams to achieve common goals. Question: How do you handle difficult customers or situations? Answer: When dealing with difficult customers or situations, I try to remain calm and professional. And I focus on finding a solution that meets the customer's needs while also aligning with company policies and procedures. I believe that active listening and empathy are critical in these situations, as they can help to de-escalate the situation and build rapport with the customer. Question: Can you give an example of a time when you had to think creatively to solve a problem? Answer: Sure. During my final year of university, I was part of a team tasked with developing a marketing campaign for a local non-profit organization. We had limited resources and a tight deadline, so we had to get creative in our approach. I suggested that we use social media to reach our target audience, and I developed a plan for a social media campaign that incorporated user-generated content and targeted advertising. The campaign was a success, and we were able to exceed our goals and help the non-profit organization raise awareness and support for its cause. तो ये जो क्वेश्चन थे इसमें मैंने आंसर भी दिए आपको। तो इन आंसर को अच्छे से रीड आउट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी पेन लेके लिख लेना, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए कि जब भी ये क्वेश्चन किए जाएं तुमसे तो आप अच्छे से आंसर दे दो और कॉन्फिडेंटली बात करना, क्योंकि वो लोग सिर्फ यही देखते हैं कि जो बंदा आया है इंटरव्यू देने, जो कंपनी ज्वाइन करेगा, उसमें कॉन्फिडेंट लेवल कैसा है उसका। तो ये चीज़ वो लोग सबसे पहले देखते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप बात कर पा रहे हो या नहीं हो। क्योंकि वॉइस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मेन यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। जब भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हो या कस्टमर से बात कर रहे हो तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, किसी प्रोफेशनल बंदे से बात हो रही है मेरे सामने। अपना कॉन्फिडेंस बढ़िया रखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लेना, ताकि जब भी तुम इंटरव्यू देने जाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो और रिजेक्ट ना हो तुम। इसके क्वेश्चन के साथ में कुछ क्वेश्चनिंग ये भी हो सकती है, क्योंकि आजकल CNX के इंटरव्यूज में मैं सुन रहा हूँ कि भाई वो लोग ना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं बंदों को ये बोलने के लिए कि नाइट शिफ्ट के लिए अवेलेबल हो या नहीं, और तुम्हारा वीकली ऑफ जो होते हैं वो रोटेशनल होते हैं उसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, एंड जल्दी से छोड़ोगे तो नहीं, ऐसा ये सब कुछ। तो पहली इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं तुम्हें दूंगा, अगर BCom या फिर CA फॉर्म से हो और CA का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हो तो भाई वो ना अपने रिज्यूम में से बिल्कुल हटा देना, ठीक है, रिमूव कर देना। क्योंकि BCom वालों को ये तभी लेते हैं जब उन्होंने किसी CA फॉर्म में काम नहीं कर रखा होता। CA फॉर्म में ऑलरेडी आप अगर एक्सपीरियंस लेके आए हो तो वो सबसे पहली चीज़ यही पूछते हैं कि भाई तुम CA में काम कर रहे थे, वहाँ से हटे होगे तभी तुम यहाँ आए हो, सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑफ अर्निंग के लिए तुम CNX ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद तुम छोड़ दोगे जब तुम्हारा काम निकल जाएगा। तो ये चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपका रिज्यूम पे, तो इसको ऑलरेडी रिमूव कर देना। अगर तुम BCom से ग्रेजुएट हो तो BCom लिखे रहना, बस तुम्हारे पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कंपनी ज्वाइन करने का। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछने हो मैसेज करके पूछ लेना, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।